हेलो नमस्कार, वेलकम टू नर्सिंग केयर एंड एजुकेशन यूट्यूब चैनल। तो आज हम इस वीडियो में कैथेटराइजेशन वर्सेस जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और जो क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार ऑलरेडी आया है इसके बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए देखेंगे क्या है इस वीडियो में। सो पहला क्वेश्चन, ड्यूरिंग कैथेटराइजेशन चूज द साइज ऑफ कैथेटर लुकिंग बाय डेस, looking by the diameter of urethral meatus. Okay, ensure that catheter is not too large or too tight at urethral meatus, because too large catheter may cause painful distension of the meatus and damage to the uroepithelium. ये चीज भी आपको ध्यान रखना है। For female patient, advance the catheter normally to day cm 5 to 7 cm or 2 to 3 inches. Next, for male patient, advance the catheter normally day cm 15 to 25 cm or 6 to 10 inches. So ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका आपको ध्यान से पढ़ना है क्योंकि ये जो क्वेश्चन जैसे फीमेल पेशेंट में कितना है 5 to 7 cm एडवांस करना है, मेल पेशेंट में 15 to 25 cm एडवांस करना है। ये क्वेश्चन आया है और याद रखिए। Next, normal length of female urethra is less, about 3 to 4 cm. Next, normal length of male urethra is about 21 cm. उसके बाद after catheterization, always replace or reposition the foreskin because it can cause paraphimosis. Next, paraphimosis is the condition in which foreskin becomes trapped behind the corona of the glans penis. ये चीज़ आपको याद रखना पड़ेगा। अगर कैथेटराइजेशन देने के बाद जो पेनिस का फॉरस्किन है ना उसको हम रिप्लेस पर रिपोजिशन करना है क्योंकि इट कैन कॉज paraphimosis. Next, avoid separating catheter and connecting tube because disconnection of the catheter and tubing is the major cause of urinary tract infection. उसके बाद ड्यूरिंग सुप्राप्यूबिक कैथेटराइजेशन द नीडल एंट्री पॉइंट इज midline 2 to 3 cm above the symphysis pubis and directly above the palpable bladder. ये चीज भी आपको याद रखना है कि सुप्राप्यूबिक कैथेटराइजेशन टाइम में हम नीडल कहाँ एंट्री करेंगे। उसके बाद व्हाट इज एपिस्पाडियासिस एंड हाइपोस्पाडियासिस। Both epispadiasis and hypospadiasis are birth defect involving urethra. Both describe the position of the urethral opening. Epi means above and hypo means below. Next, changing indwelling catheter or drainage bags at routine fixed interval is not recommended. Rather, it is suggested to change the catheter and drainage bag based on clinical indication such as infection, obstruction, or when the clot system is compromised. But the catheter itself will need to be removed and replaced at least every 3 months. Okay? ये चीज भी आपको याद रखना है। Next, what is the difference between a Foley catheter and a silicone catheter? 100% silicone Foley catheter work just like other types of Foley's catheter. The only difference is that they are made of entire of silicone instead of latex. People who have allergy to sensitive latex use 100% silicone Foley catheter. Silicone catheter are specially used in the patient requiring long-term indwelling urinary catheters or to the latex allergy. Means जो patient ज़्यादा दिन के लिए कैथेटर नीड कर रहा है और जिसका लैटेक्स एलर्जी है वो लोग के लिए ये सिलिकॉन कैथेटर यूज होता है। उस पर हम डिस्कस करेंगे कि कैथेटर के साइज के हिसाब से उसका कलर कोड कैसा होता है। जिस कैथेटर का साइज 6 फ्रेंच गॉज होता है उसका कलर कोड ग्रीन होता है, 8 का ब्लू, 10 का ब्लैक, 12 का वाइट एंड 14 फ्रेंच गॉज का डार्क ग्रीन, 16 का ऑरेंज एंड 18 का रेड एंड 20 फ्रेंच गॉज का येलो। ये चीज़ आप याद नहीं रहेगा, थोड़ा याद रखने के लिए मुश्किल है, फिर भी अगर आप बार बार पढ़ेंगे ना ये सारी चीज़ याद रह जाएगा। बेसिकली हमारा 14 का ज़्यादा यूज होता है, डार्क ग्रीन एंड 18 रेड एंड 16 फ्रेंच गॉज का ऑरेंज एंड येलो का 20।
सो ये चीज़ आप पढ़ाई कीजिए, याद रह जाएगा। सो आई होप मैंने कैथेटराइजेशंस के ऊपर जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था कवर अप किया, और जो भी क्वेश्चन रह गया कोई बात नहीं, आगे हम पूरा एंटायरली नर्सिंग प्रोसीजर्स के ऊपर एक मास्टर क्लास भी करेंगे। सो अगर आप अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये चैनल आगे जाके आपको बहुत हेल्प करेगा। जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ना, सब हम डिस्कस करेंगे। बस थोड़ा पेशेंस रखिए और आप हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर टू फ्रेंड्स।